Hello, my dear students. Today, in the continuation with the Unit 5th, chapter number 13, we are going to discuss with the uh, some important points which are related to the interactions. Dear students, as we know that interaction is the collaboration. It is the the relationship between the two organisms in which they demand something from one another, or they give something to another. As we know that in the living world, plants and animals, okay, so they are both dependent upon each other, right? If we talk about the plants, they cannot survive alone, okay. They need soil microbes to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrients for the absorption. And if we talk about the plants pollination, then can they do this pollination alone? No, they need some animal agent or some other agents for this pollination part. So we can say, if we talk about the animals, yes, animals are dependent on the plants. They need food, they need energy, and they get this energy and food from the plants and animals. So both in the nature, both animal, plants, microbes, they are dependent upon each other. They cannot survive in isolation, and they interact with each other in many ways. So the interaction among the individual of a population, individual of different population or the same population, it is called interspecific interaction. Here is the important point, that is interspecific means the population of two different species, they interact with each other. Sometimes this interaction can be beneficial, it could be neutral, it could be determinant, okay. So if we are having different type of interaction, so let us have a look on the types of interaction. So dear students, sometimes these kind of interactions are positive and sometimes these are negative, right? If we talk about the positive or beneficial interaction, these are the interaction in which one or both member, okay, this is the important point, one or both members, they get the benefit from each other, right? And the second point is neither one is harmed, means no one get the loss and one member of the both interacting species or both species, they get the benefit, right? But when we talk about the negative interactions, negative means harm, okay. So we can say one or both interacting species is harm, right? Means we are having two species, then one species is in loss, right? Or many times both species can have the loss. So let us start with the positive or beneficial interaction. These interactions are also called beneficial interaction. We are having different phenomenon under beneficial interaction. These are mutualism, commensalism and proto-cooperation, okay, proto-cooperation. So let us start with the mutualism. Mutualism means mutual means मिलजुल कर, okay. This kind of interaction is also called obligate mutualism. Sometimes we are having some keywords which easily denote this kind of interaction. One is co-evolution, means two species, they equally, they mutually, they together evolve, they together exist, they together extinct means ख़त्म हो जाती हैं. यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटरेक्शन आती है उसमें हमारे पास दो स्पीसीज़ हैं, दो स्पीसीज़ के जो डिफरेंट मेंबर हैं, दो मेंबर हैं सपोज, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक का गुजारा दूसरे के बिना नहीं हो सकता. So this is a obligatory type of relationship, means they cannot survive alone, they are dependent upon each other for the growth and survival. So let us take some example. Termites and flagellates, right? This is the animal interaction, means flagellates, they survive inside the termites, they help in the digestion of the cellulose. If we talk about the plant and animal mutualism, then yucca plant flowers and Pronumba insect, okay, they interact with each other. This insect help in the pollination of this flower, okay. So and
automatically get the food from it. So this is the interaction between the plant and animal. And next interaction is about the algae and fungi. That is a very important word, lichen. Lichen is the it is a mutual relationship among the algae and fungi. Next we are having some more example. Let us have a look on some other examples. One is about the fig tree and wasp species. Okay, you know what happened, fig tree में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो wasp है, वो इसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, वहाँ पे अपने एग देता है। फिग फ्लावर की पॉलिनेशन होती है वेस्प के थ्रू, और जो वेस्प है वहाँ पे एग लेइंग करता है फ्रूट के अंदर। तो इस तरह से दोनों ही वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो नरिशमेंट ले लेता है और उसका फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बीज एंड ऑर्चिड फ्लावर के बारे में, तो हनी बीज क्या करती हैं, हमारा हनी बीज जो है वो उसको पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं अगेन, and bees are getting the nectar from that also, so both of them get the benefit. Okay, you know what happened, bees और ऑर्चिड फ्लावर है हमारे पास एक मेडिटेरियन एरियाज़ में हमें एक फ्लावर एक ऑर्चिड प्लांट मिलता है ऑफेरेस। यू नो इट शोज़ द बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल डेसिट, मीन्स नकल करना। ये जो फ्लावर है इसका एक पेटल इट लुक लाइक द फीमेल हनी बी की तरह लगता है, तो जो मेल होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सूडो पॉपुलेशन होती है वहाँ पे, और इस तरह से बाय दिस वे जो पॉलिनेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। सो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों फ्लावर जो है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं, बीज हैं और जो फ्लावर है, दे बोथ गेट बेनिफिटेड, यानी कि म्यूचुअलिज्म में दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, या कई बार एक ऑर्गेनिज्म को या जो एक स्पीशीज़ में इन्वॉल्व है उसको फ़ायदा होता है। तो इस केस में क्या है, बी उसमें से क्या ले रही है, नेक्टर ले रही है, या उसका मतलब उसका रस चूस रही है, और जो ऑर्चिड फ्लावर है उसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म में हमने बी और ऑर्चिड फ्लावर का एग्जाम्पल देखा, फिग ट्री और वेस्प स्पीशीज़ का, वेस्प एग लेइंग करता है, फिग ट्री का पॉलिनेशन हो जाता है इसके थ्रू। एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को हम लाइकन बोलते हैं, और समटाइम यूका प्लांट और प्रोन्यूबा इंसेक्ट जो हैं दे आल्सो लिव इन द म्यूचुअल रिलेशनशिप, टर्माइट्स एंड फ्लैजुलेट। सो दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है सभी बोर्ड में। अगर आप +2 क्लास में हैं और आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो हर बोर्ड में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली ऐसा पूछा जाता है कि एक फ्लावर का नेम दे देंगे, बी का नाम दे देंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को, और बताएंगे कि इसमें किस तरह की इंटरेक्शन होती है। तो वी नीड टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में भी हमें देखना पड़ता है म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, या कोई और तरह की इंटरेक्शन है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमेंसलिज्म की। देखिए, म्यूचुअलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, राइट, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। जब हम कमेंसलिज्म की बात करते हैं तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म को, हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें एक को बेनिफिट होता है, वन इज़ बेनिफिटेड एंड सेकेंड इज़ रिमेन अनइफेक्टेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि 2 स्पीशीज़ हैं, 2 में से एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइनस का एग्जांपल लेते हैं। दीज आर द वुडी प्लांट्स हैं ये, और इनकी जो रूट्स होती हैं, लाइनस क्या करता है, ये वुडी प्लांट्स होते हैं। नो डाउट कि प्लांट के पास रूट्स भी हैं, वो रूट से न्यूट्रिशन ले सकता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि अपने स्टेम का यूज़ करता है। ये जो प्लांट है ये अपने स्टेम का यूज़ करता है दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेने के लिए, प्रॉपर लाइट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। तो बहुत जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें इस तरह के प्लांट्स मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल आता है भोनिया एंड टीनोस्पोरा, राइट। अगर हम बात करते हैं एपीफाइट की, एपीफाइट भी इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एपी का मतलब होता है ऊपर, और फाइट्स मतलब प्लांट, यानी कि कुछ ऐसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर, अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, यहाँ पे क्लियर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको ये मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, यानी कि वो उससे स्पेस ले रहा है, ह्यूमिडिटी के लिए, लाइट के लिए उसके स्पेस को यूज़ कर रहा है। तो ऑर्चिड्स हैं, हैंगिंग मॉसेस हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एपीफाइट्स।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एपिजोन्स की। ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो एपी मीन्स ऊपर आ जाएगा। जोन वर्ड यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए हमें बहुत अच्छा तरीका है। जोन मतलब जू से रिलेटेड है एनिमल्स, तो इट इंक्लूड्स मतलब इसमें वो एनिमल्स वगैरह आते हैं जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सक्कर फिश का, तो ये शार्क के ऊपर सर्वाइव करती है। पायलट फिश शार्क में पाई मिलेगी, शार्क की बॉडी के ऊपर। इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलेंगे आपको। क्लॉन फिश है, सी एनिमॉन के साथ इसकी इंटरेक्शन आती है। बार्नेकल वेल का इंटरेक्शन आता है। कैटल, एरगेट बर्ड्स और कैटल का। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब भी कोई कैटल ग्रेजिंग करती है तो ये जो एरगेट बर्ड्स होते हैं वो उसके आसपास घूमते हैं, आपने कहीं देखे भी होंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे कैटल अपना खाना खाती जाएगी, घास खाती जाएगी, तो जहाँ जहाँ वो पैर रखेगी उस प्लेस पे घास साइड पे हो जाती है, तो वहाँ पे स्पेस एक्सपोज हो जाता है और वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें वो ये जो बर्ड हैं उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि कैटल को कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, लेकिन एरगेट बर्ड को अपना फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो ये तो थी हमारी हमने दो इंटरेक्शन पढ़ ली हैं, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। थर्ड हमारी जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम बात करेंगे प्रोटो कॉर्पोरेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड बट दे कैन लिव सेपरेटली। मीन्स दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है लेकिन वो सेपरेटली रहते हैं। तो ये फैकल्टेटिव हो सकता है, ओकेजनल एसोसिएशन हो सकती है, यानी कि नॉन ऑब्लिगेटरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब इट इज़ नॉट श्योर, एवरी टाइम इट इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट। मतलब जब भी ज़रूरत है उस टाइम में एसोसिएशन होता है या कभी कभी एसोसिएशन हो रहा है, हमेशा ये एसोसिएशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो एसोसिएशन से बोलते हैं फैकल्टेटिव एसोसिएशन या कोऑपरेटिव, ऑप्शनल या ओकेजनल एसोसिएशन। जैसे हर्मिट क्रैब है, हर्मिट क्रैब सी एनिमॉन के साथ कोलैबोरेशन में रहेगा एट द टाइम ऑफ फीडिंग, राइट। तो ये मतलब ये दोनों तरह से होती है, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए भी रहती है इनकी कोलैबोरेशन सी एनिमॉन के साथ, या कई बार नहीं भी रहती है। ट्रिक बर्ड है, रेड बिल्ड येलो बाइल्ड भी बोलते हैं, राइनोसोरस के अंदर पाया जाता है ये। क्रोकोडाइल और बर्ड है, यस क्रोकोडाइल जैसे ही बाहर निकल रहा है तो बर्ड उसके ऊपर आकर के बीच बीच में उसकी स्किन को ख़राब कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटो कॉर्पोरेशन। मीन देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोटो मतलब कभी प्रोटो को हम यहाँ पे अलग से रखेंगे, कॉर्पोरेशन मीन्स कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएशन जो है वो नॉन ऑब्लिगेटरी है, मीन्स परमानेंट नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। स्क्वेंजिंग वर्ड आता है, स्क्वेंजिंग का मतलब होता है खाना, किसी चीज़ को खा के ख़त्म कर देना। तो स्क्वेंजिंग में क्या होता है कि एसोसिएशन इन विच वन पार्टनर कॉल्ड स्क्वेंजर और सेप्रोबायोंट भी हम इसे बोलते हैं, ईट द डेड बॉडीज़ ऑफ द अदर एनिमल। जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे वल्चर्स वगैरह होते हैं हमारे, जैकल है, वल्चर्स हैं, एंट है, क्रो है, ये सब क्या करते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं या नेचुरली किल होते हैं या शिकार किसी ने करके फेंके होते हैं तो वो उसे किल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस स्क्वेंजिंग इज़ अ प्रोसेस एक्चुअली, राइट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकेइंग और ईटिंग द डेड और डेड मैटर। ओके, एंड द ऑर्गेनिज्म विच डू दिस प्रोसेस दीज आर कॉल्ड स्क्वेंजर और सेप्रोबायोन्ट्स। एक और टर्म आती है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म में क्या होता है कि हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक जो है वो मास्टर है, दूसरा उसका स्लेव का काम करता है, राइट। तो एक जो है मास्टर है, यानी कि एक ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे हम एल्गी और फंजाई का देखते हैं, लाइकन जब बनते हैं तो उसमें एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो ज़्यादा काम वो कर रही है, तो ज़्यादा वर्क जो करता है उसे हम बोलते हैं मास्टर, और जो सेकेंड वन होता है उसे हम बोलते हैं स्लेव कहते हैं उसे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं। आज हमने पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने डिस्कस किया म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड कॉपरेशन, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।